سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں جویریہ عباسی۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی خبروں پر۔ ہیسکو افسران کا ٹیم کے ہمراہ ٹھٹھہ کے مختلف مقامات پر چھاپے، کئی ٹرانسفارمرز اور کنڈے کاٹ دیے گئے، تاریں ضبط کر لی۔ اس موقع پر ایکسین ہیکسو کا کہنا تھا کہ بجلی چوری بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، چوروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے بجلی صارفین کو مطلع کرتے ہوئے کہا کہ جلد سے جلد اپنی بجلی کے واجبات ادا کریں اور میٹرز لگوائیں۔ جامشورو کے قریب CIA پولیس کی کارروائی، 2 افراد گرفتار۔ ملزمان سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 سے ادویات چوری کر کے لے جا رہے تھے۔ چیکنگ کے دوران 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کی شناخت امجد ملاح اور محمد علی ملاح سے ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ دوسری جانب سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ہیلتھ اینڈ سائنسز 7 شریف کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا کہ ادویات چوری ہونے کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ انکوائری مکمل کر کے اصل حقائق منظر عام پر لائے جائیں گے۔ میانوالی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے روڈ سیفٹی مہم کا آغاز کر دیا۔ روڈ سیفٹی مہم کے سلسلے میں ٹریفک پولیس میانوالی نے واک کا انعقاد کیا۔ واک میں ٹریفک پولیس کے افسرانوں، اہلکار اور شہریوں نے شرکت کی۔ ٹریفک پولیس نے لوگوں میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے پمفلٹ تقسیم کیے۔ DPO اور DSP ٹریفک میانوالی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا گیا۔ جلال پیروالا مٹی اور ریت کی ریہڑی اور ٹریکٹر ٹرالی والوں پر 300% ٹیکس بڑھا دیے گئے۔ متاثرین انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے مٹی، ریت کی ریہڑی اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے شہر میں داخل ہونے پر 300% ٹیکس بڑھا دیے ہیں۔ ریت کی ریہڑی شہر میں لانے پر 70 روپے ٹیکس ہوتا تھا، جو اب بڑھا کر 350 روپے کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ریت اور مٹی کی ٹریکٹر ٹرالی پر ٹیکس بڑھا کر 1500 روپے کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ ہم مزدوروں پر رحم کرے، ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ انتظامیہ فوری طور پر ٹیکس کم کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے، جہاں ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 پنجاب کی خصوصی ہدایت پر پنجاب ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 ہوشاب کے زیر اہتمام ڈگری کالج برائے خواتین میں ڈیزاسٹر رسپانس فور اسموک ایکسرسائزز کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ریسکیو آفیشلز، ریسکیو عملہ اور ریسکیو رضاکاروں نے بھی شرکت کی۔ DPO ریسکیو نے کہا کہ بڑے سانحات سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر رسپانس فورس کی فرضی مشقیں کی گئی۔ اس موقع پر جائے حادثے پر انسیڈنٹ کمانڈ سسٹم قائم کیا گیا تاکہ بڑے حادثات میں موقع پر موجود رہ کر امدادی کاموں کو زیادہ مؤثر طریقے سے جاری رکھا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرخان سے، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ کاف کی گجرخان میں اہم کامیابی، 2 مضبوط دھڑے کاف لیگ میں شامل۔ مسلم لیگ کاف کی ضلعی قیادت کی کیانیز رائل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز GI روڈ برقی جدید آمد۔ سیاسی، سماجی شخصیت، ثقافتی حوالے سے اپنی خصوصی پہچان رکھنے والے راجہ انجم نواز کیانی اور کونسلر راجہ شکیل نے اپنے دوست احباب برادری سمیت مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ضلعی قیادت مسلم لیگ کاف اور دیگر احباب موجود تھے۔ راجہ انجم نواز کیانی اور کونسلر راجہ شکیل نے کہا کہ ہم اپنی تمام تر کاوشیں مسلم لیگ کاف کے لیے بروئے کار لائیں گے۔ ضلعی قیادت کا کہنا تھا کہ بہت جلد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر تحصیل گجرخان میں مسلم لیگ کاف کی تنظیم سازی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ پاکپتن میں انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کر کے 3 کروڑ روپے مالیت کی 96 کنال اراضی واگزار کروا لی۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق واگزار کروائی گئی اراضی کی مالکیت 3 کروڑ روپے ہے۔ باثر زمیندار نے اراضی کو قبضے میں لے کر فصل کاشت کر رکھی تھی۔ انتظامیہ نے بھاری مشینری کی مدد سے رقبہ واگزار کروا کر سرکاری تحویل میں لے لیا۔ فاروق آباد میں تھانہ سٹی کی کارروائی، آتش بازی کا سامان اور پتنگ فروشی کرنے والے ملزم گرفتار، پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز شروع کر دیا۔
सकरंद कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार और ट्रॉलर में तसादुम, जिसके नतीजे में 3 औरतों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को हमदर्द फ्री एम्बुलेंस के जरिए मुताल्लिका अस्पताल सकरंद पहुंचाया, जहां जख्मियों को तिबी इमदाद देकर मजीद इलाज करने के लिए नवाब शाह PMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों का ताल्लुक मोरो शहर से बताया जा रहा है। लाल भट्टी के बासियों का ठुल के करीब थाना मीरपुर बरोड़ो पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ गांव लाल भट्टी के बासी सड़कों पर निकल आए। पुलिस के खिलाफ एहतजाज और शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि आवाम रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। चोरी डकैती समेत दीगर वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। गुज़िश्ता रात चोरों ने असले की नोक पर 4 दुकानें और एक होटल का ताला तोड़कर मोटरसाइकिल, टेलीविजन, सोलर प्लेट्स के साथ साथ बैटरी भी चोरी करके ले गए। मुतासरीन का मजीद कहना था कि थाना मीरपुर पुलिस को इतला दी, मगर पुलिस की जानिब से ताहाल कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। गाँव लाल भट्टी के मकीनों ने SSP जैकबाबाद से अपील की कि मामले का नोटिस लेकर मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान वापस करवाए जाएं। रावलपिंडी थाना नसीराबाद पुलिस की अहम कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस 2 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान साकिब और तौसीफ के कब्जे से 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान गन पॉइंट पर लोगों से मोटरसाइकिल छीनने और मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातों में मुलविस हैं। ईसा हेल में गर्मी शुरू होते ही अवाम ने ठंडे मशरूबात का रुख कर लिया। डेरा गाजी खान का मशहूर गोटा बादाम अवाम की तवज्जो का मरकज बना रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं ईसा हेल से तारिक रहीम। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ती ही ईसा खेल में जगह जगह रोड किनारों पर सरदई के स्टॉल लग गए हैं। गर्मियों का अनमोल तोहफा सरदई, जिसे गोटा बादाम भी कहा जाता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग सरदई पीते नजर आते हैं। सरदई पीने से जिगर और मैदे को ठंडक और तवानाई मिलती है। डेरा गाजी खान का मशहूर गोटा बादाम को गर्मियों का लाजवाब तोहफा भी समझा जाता है। सौंफ, गरी, काली मिर्च और मगज बादाम और चीनी से तैयार करदा खालिस गोटा बादाम जिस्म को तकवीत पहुँचाने में भी मुफीद है। शेर ने कहा कि हम सरदई पी कर गर्मी को भगाते हैं। तारिक रहीम, A1 न्यूज़, ईसा खेल। चिन्योट में गर्मी का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। इसी पर मजीद जानते हैं चिन्योट से अदील जहांगीर से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला चिन्योट के मुकाम ख़त्म नबूवत चौक पर, और आज चिन्योट में पंजाब भर के अजलाओं की तरह चिन्योट में भी आज गर्मी की शिद्दत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत डिग्री सेंटीग्रेड 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है। और चिन्योट में इस वक्त एक कसीर तादाद ज़िला चिन्योट की शहरियों की जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर ठंडे मशरूबात, जैसा कि मेरे पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि चिन्योट में इस वक्त ठंडे मशरूबात गन्ने की रो, जो कि यहाँ पर चिन्योट शहरी जो है ज़िला चिन्योट के, इसको पीने के लिए यहाँ पर जो है रुख करते हैं। और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ज़िला चिन्योट के शहरी जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए रुमाल, कैप्स और इसी तरह छतरी का जो है ख़ासकर जो यहाँ पर वो इस्तेमाल करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। और चिन्योट में इस वक्त 43 डिग्री जो है सेंटीग्रेड और दर्जा हरारत जो है चिन्योट में गर्मी का जो है रिकॉर्ड किया गया है। जी, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, ऐसे ऐसे शहरियों ने मशरूबात के स्टॉल्स की जानिब रुख कर लिया। जगह जगह मियारी मशरूबात दस्तयाब हैं। इसी हवाले से जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद जवार हुसैन काजमी से। जी जवार, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा का मशहूर तरीन चौक है शाहीन चौक, कचहरी बाज़ार, कदीमी बाज़ार है। ऐन बाज़ार के आगाज़ में ही इस वक्त जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लोगों ने मशरूबात के स्टॉल की तरफ रजू करना शुरू कर दिया है। आज 3-4 रोज़ से मुसलसल शदीद गर्मी का सामना है। इस वक्त लोग सस्ता मशरूब पीने की तरफ राग़िब हो रहे हैं। सस्ता मशरूब शहर में वाफर मिक़दार में मौजूद है, लेकिन मयार पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। गैर मयारी भी यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन इस स्टॉल पे सबसे ज़्यादा रश है। इस स्टॉल वाले से जानते हैं कि यहाँ ये जो लेमन का स्टॉल है, यहाँ रश क्यों है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद साहब। शहजाद भाई, क्या वजह है आपके पास इतना रश क्यों है? सर हमारा मेयार बहुत अच्छा है, नींबू खालस नींबू इस्तेमाल करते हैं, खालस चीनी इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमारा मेयार बहुत अच्छा है। और ये लेमन का पानी कहाँ से लेते हैं? ये खुद बनाते हैं सर। अच्छा, आपने अपने घर में ये सारा तैयारी का जी सारे मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था अच्छी चीज़ इस्तेमाल करनी है बेटा। मेरा उस्ताद पप्पू जी लेमन सोडा है, रावलपिंडी में उसका ठीक है।
तो आप ये कब से काम कर रहे हैं? मुझे सर 4-5 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो दिन भर आपके पास यहाँ रश रहता है, सुबह कितने बजे से रात कितने बजे तक होता है? सर सुबह 10 बजे हम आते हैं, रात 2 बजे तक माशाल्लाह रश लगा रहता है हमारे पास। तो क्या वजह है कि शहरी ज़्यादा आपके पास क्यों आते हैं? सर हमारा म्यार अच्छा है, खालिद चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम। चलें, यहाँ एक शहरी मेरे साथ मौजूद है जो मशरूब पी रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस मशरूब के हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी कोट मोहम्मद से। अच्छा, तो ये क्यों पी रहे हैं आप यहाँ? बस एक ही दिन पीते हैं, जब आते हैं मैं जब भी आता हूँ यहाँ से आगे पीता हूँ। अच्छा। ये सस्ता भी है और अच्छा भी है और गर्मी के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं सरगोदा शहर का हूँ। अच्छा, तो आप भी यहाँ मशरूब पी रहे हैं? हाँ जी। क्या वजह है सारे स्टॉल छोड़ के आप यहाँ क्यों पी रहे हैं? ये सस्ता भी है और सही भी है। जब भी चक्कर लगता है जब भी हम ये पीते हैं क्या। जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है। इनका कहना यह है कि सस्ता होने के साथ साथ ये मयारी भी है, जिस वजह से हम यहाँ जब भी इस वक्त शहर के चौक से गुजरते हैं तो इनका मशरूब पी कर जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ जवार काजमी, सरगोदा। भावलपुर डिवीजन को मुखर डिजीज फ्री जोन के क़याम के हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के ताउन से तहसील चिश्तिया में मुखर वैक्सीन के 8वें मरहले का आगाज हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं चिश्तिया से नुमाइंदा A1 TV अदील से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिश्तिया में महकमा लाइफ स्टॉक और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के ताउन से और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब आफ्ताब पीरज़ादा की हदायत पर तहसील चिश्तिया में भी मुँह खर जैसी मूजी बीमारी से बचने के लिए अफासी वैक्सीन के 8वें मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। चिश्तिया डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8वें मरहले में 2,70,000 भैंस जानवरों को वैक्सीन की जाएगी। वैक्सीन के लिए तहसील चिश्तिया में 34 टीमें बनाई गई हैं जो कि 60 दिनों के अंदर अंदर फार्मर्स के घर जाकर जानवरों को मुखर की हिफाजती वैक्सीन लगाएंगी। इन्होंने मजीद कहा कि ख्याल करें कि ये वैक्सीन बहुत कीमती है जो कि आपके जानवरों को मुखर जैसी मूजी बीमारी से बचाती है। मेरी फार्मर से मीडिया के तौर से गुजारिश है कि महकमा लाइफ स्टॉक की टीमों से तावन करें ताकि बर वक्त वैक्सीन लगाई जा सके। अगर किसी गांव में वैक्सीन हो जाती है और वहां कोई फार्मर्स रह जाता है तो अपनी नज़दीकी महकमा लाइफ स्टॉक के अस्पताल में फौरी रब्ता करें। जी। बजट 2021-22 में अवाम को क्या रिलीफ दी गई? बजट में शामिल पहलुओं पर अवाम का क्या रद्द अमल है? और इस बजट के अंदर अवाम को रिलीफ दिया गया है, अच्छा खासा रिलीफ दिया गया है। बजट तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होया जो बजट पेश हुकूमत ने किया हैगा। इस कार का मुझे क्या फ़ायदा हैगा? मोबाइल में जो मैं रिश्तेदारों से बातचीत कर लेता था वो भी महंगा कर दिया इन्होंने। कोई गरीब तो रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। इस बजट में गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उन्होंने गाड़ियों का टैक्स कम किया है, वो तो अमीर लोगों के लिए गवर्नमेंट ने किया है ना। ये अच्छा है, आइंदा इंशाल्लाह मैं चाहूँगा इसी तरह जो है ना आस्ते आस्ते रिलीफ मिलेगा, यकदम तो नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में 850 गाड़ियों की कीमतों में 2.5 से 3 लाख तक कमी कर दी गई है और पाकिस्तानियों को क्या चाहिए, खुश हो जाएं, एंजॉय करें, बजट के मज़े लें। मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पे ये जो बजट है वो काफ़ी बेहतर है पिछले साल की निस्बत, लेकिन जो मुलाजमीन हैं या पेंशनर्स वगैरह हैं उनकी जो है ना उनको तफज़ात हैं इसमें कि जिस तरह अफवाहें पहले सुन रहे थे कि जो पेंशन या दूसरे तनख्वाहें वगैरह वो 25 या 30% जो है ना वो बढ़ाई जाएंगी। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।